So today we will discuss about analytical method validation for a drug substance. Analytical method validation. So in the validation approach for a drug substance or a drug product, first we understand what is the difference between precision and accuracy. First thing is precision, and second thing is accuracy. So in the precision, we determine the RSD. RSD means related standard deviation, and in RSD हो गया accuracy. In the accuracy, we check the closeness of result. Suppose if an assay value is 99.9%, so in the precision we check the repetition of result 99.9, 99.8, 99.6, 99.5, 99.4, 99.1. The 6 results, we check the RSD of 6 results. Thus RSD of 6 results, and this RSD, if the acceptance criteria is suppose 0.5% or 1%, if acceptance RSD meets acceptance criteria, that means our method is precise. So that is the precision. In accuracy, suppose the limit is 98.0 to 102.0. Our target result is that. So target value fall between these values. Suppose 99.9, suppose 99.0. So that is the major difference between precision and accuracy. In the validation approach, these are most important terms, and based on these terms, whole method is validated. If these results meets acceptance criteria, we can say our method is precise. So in the analytical method validation, we define the parameters which evaluate for validation. Number one is specificity. स्पेसिफिसिटी क्या होती है? स्पेसिफिसिटी में हम चेक करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर कंपाउंड. सपोज अवर मेथड वैलिडेशन फॉर अ लिसिनोप्रिल, we check any interference at the time of lisinopryl peak. Suppose in the HPLC, we check the retention time of lisinopryl, and we perform any blank. No interference should be over there of lisinopryl peak. That means here should be plain baseline, no interference. Suppose if no interference at the lisinopryl peak, we can say that is the no interference of lisinopryl peak. First parameter is that. Second specificity we can check from PDA test. In the PDA, we check the peak purity index. Peak purity index would be more than 0.99. So we can say that is the method is specified. Specific method is our specificity result is okay. That is the first parameter of any validation. Second parameter is LOD and LOQ determination. In LOD, that is the, as a term denotes, LOD is limit of detections, and LOQ is the limit of quantitation. As a limit of detection means the analytes should be visible in the chromatogram, and limit of quantitation means
we can quantify the LOQ. So the determination of LOQ and LOD. Suppose our target, our specification limit is 100 ppm or 10 ppm. So we inject it at the lowest level. Suppose 0.1 ppm, 0.2 ppm, 0.3 ppm. Suppose we visually detected the analyte at 0.1 ppm, that will our LOD. And generally we can determine LOD as a 0.1 ppm and multiplication of by 2 or multiplication by 3, that is the LOQ. LOQ value is 3 times or 2 times of LOD value. We can increase LOQ value also if our precision not meets or other thing, but the criteria is LOQ is suppose if the limit is 10 ppm of specification, it should be 50% of below than 50%. Suppose if स्पेसिफिकेशन लिमिट अगर 10 ppm है तो हम 5 ppm से ज्यादा LOQ को नहीं रख सकते हैं। जो टारगेट कंसंट्रेशन है, जो टारगेट लिमिट है हमारी, उससे 50% के ज्यादा हमारा LOQ वैल्यू नहीं हो सकती है। तो अगर 10 ppm की अगर लिमिट है तो 5 ppm से ज्यादा की LOQ नहीं हो सकती। तो ये एक पहला स्पेसिफिसिटी हो गया। लॉस ऑन लिमिट ऑफ डिटेक्शन एंड लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन हो गया। इसके बाद में आता है हमारा प्रिसीजन। एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, प्रिसीजन जो है वो हमारा रिपीटिशन ऑफ रिजल्ट्स होता है। हमारे 6 वैल्यूज हैं तो उनको हम रिपीट करके हम जो एवरेज हमारा रिजल्ट आता है तो हम उसकी RSD निकालते हैं, तो वो प्रिसीजन होता है। कोई भी मेथड वैलिडेशन हमारा प्रिसाइज, हमारा एक्यूरेट तब कहा जाता है जब उसकी रेंज हम LOQ से लेके 150% तक हम उसको कवर करें। सपोज द LOQ वैल्यू इज 0.2 ppm एंड ये स्पेसिफिकेशन लिमिट इज 10 ppm. So our method should be validated 0.2 to 15 ppm. 0.2 ppm to 15 ppm. That means our method is validated. Means the range covers from LOQ value to 150 ppm. So in the precision test, we perform 6 injections of LOQ. 6 injection. Specification limit suppose 10 ppm. So 6 injection and 150%, 150%, that means 15 ppm. 6 injection. So the percentage RSD criteria is for generally 5% for each. We prepare the solution at LOQ level, 10 ppm level, 150% level and inject it 6 times and RSD is 5%. That is the precision. After precision, first our is specificity as described earlier. Second, LOD and LOQ. Third one is precision. जैसा कि बोला हमने LOQ से लेके LOQ to 150%,
that is also called precision at different level. ठीक है, इसके बाद में आता है इंटरमीडिएट प्रिसीजन। इंटरमीडिएट प्रिसीजन इज intermediate precision is performed at specification level. Suppose the limit is 10 ppm. So here we prepared 6 solution of 10 ppm, 6 injections, 10 ppm 6 injection. In this case, the analyst should be another analyst. Date should be different. If HPLC is using, then HPLC should be different. Column should be different. Mobile phase should be different. Means that is the ruggedness. And these 6 injections, and here these 6 injections, इन दोनों की हम इसमें RSD निकालते हैं। इस RSD की लिमिट होती है 10%। अगर एक एनालिस्ट ने मतलब प्रिसीजन लगाया है, 10 ppm के 6 इंजेक्शन लगाया है, और दूसरे एनालिस्ट ने अगले दिन या दूसरे दिन इंटरमीडिएट प्रिसीजन लगाया हुआ है, तो उसके 6 रिजल्ट और यहाँ पे 6 रिजल्ट, इन दोनों के बीच में हम RSD निकालते हैं, जिसकी लिमिट है 10%। अगर हमारा लिमिट अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में आता है, देन हम कह सकते हैं कि हमारा मेथड एक्यूरेट है। ये हो गए 4 पैरामीटर। इसके बाद में 5वां हमारा आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी इसको कहीं कहीं पर इसको रिकवरी भी बोलते हैं। इसमें हम एक्यूरेसी और रिकवरी में क्या करते हैं, ये एलोक्यू लेवल से लेके और इसको भी हम 150% लेवल तक इसको कवर करते हैं। एक्यूरेसी में क्या होता है कि सपोज सैंपल है हमारा, उस सैंपल में हमने उसको एलोक्यू लेवल पे उसको स्पाइकिंग करते हैं। ठीक है, हमारे पास सपोज प्लेन सॉल्वेंट है, प्लेन ब्लैंक है, उसमें जो हम एलोक्यू लेवल पे, एलोक्यू सपोज अगर 0.2 ppm है, तो 0.2 ppm पे लेके हम स्पाइक करते हैं और इसके जनरली 3 इंजेक्शन लगाते हैं। 3 इंजेक्शन लगाने के बाद में इसमें हम एवरेज रिजल्ट निकालते हैं। इसकी होती है लिमिट 70 से 70% टू 130%। इसके बीच में हमारी ये रिकवरी मीट होनी चाहिए। सेकेंड थिंग क्या है, ऐसे ही हम 100% लेवल पे करते हैं। 100% लेवल, उसमें भी हम स्पेसिफिकेशन लेवल पे स्पाइकिंग करते हैं और 3 इंजेक्शंस लगाते हैं। इसमें भी लिमिट है हमारी 70% टू 130%। सेम 150% के लिए 3 इंजेक्शन लगाते हैं और इसकी लिमिट है हमारी 70% टू 130%। तो ये 4 पैरामीटर हो गए। मैंने बताया स्पेसिफिसिटी, एलओडी एंड एलोक्यू डिटर्मिनेशन। उस जब हमारा स्पेसिफिसिटी हो गया, एलओडी एंड एलोक्यू डिटर्मिनेशन हो गया, उसके बाद में हम प्रिसीजन चेक करते हैं। प्रिसीजन हम एलोक्यू लेवल से लेकर 150% लेवल तक करते हैं, जिसमें कि हमारा स्पेसिफिकेशन लेवल भी कवर होता है। हम 6 इंजेक्शन सबके लगाते हैं। इसके बाद में आता है हमारा इंटरमीडिएट प्रिसीजन। इंटरमीडिएट प्रिसीजन में डिफरेंट डे होना चाहिए, डिफरेंट एनालिस्ट होना चाहिए, डिफरेंट कॉलम होना चाहिए, डिफरेंट HPLC होना चाहिए। अगर हम यूवी पे लगा रहे हैं, वैलिडेशन कर रहे हैं, तो हम इसमें यूवी हमारा अलग अगर हो सकता है तो अलग दूसरा यूवी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। पर्पस जो ये होता है कि हमारा अलग एनालिस्ट, अलग दिन, अलग इंस्ट्रूमेंट, सारी अलग चीजें भी हैं। उसके बाद में भी हमें रिजल्ट हमें प्रिसाइज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये हो गई हमारी एक्यूरेसी। इसके बाद एक इसमें होता है मेथड वैलिडेशन में एक टर्म सॉल्यूशन स्टेबिलिटी। इस सॉल्यूशन स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितनी देर तक स्टेबल है। तो
तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशन एक हमने बना दिया, सपोज हमने इंस्ट्रूमेंट में अगर हम HPLC पे लगा रहे हैं इसको, तो HPLC पे हमने 6 पहले सिस्टम सुटेबिलिटी लगा दिया उसका, उसके बाद में 0 आवर्स पे मतलब हमने एक सॉल्यूशन बना लिया, उसको हमने एज ए 0 आवर्स उसका टाइम नोट कर लिया और उसको हमने इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, 0 आवर्स पे जब हम इसको इंजेक्ट करेंगे तो एक हमको एरिया मिलेगा या अगर हम यूवी पे कर रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्बेंस मिलेगी। ठीक है, अब उसको हम डिफरेंट इंटरवल, सपोज 4 आवर्स, 8 आवर्स, 12 आवर्स। ठीक है, तो इन पे हम जहां तक जा सकते हैं मैक्सिमम हम उसको इंजेक्ट करते हैं और परसेंटेज डिफरेंस निकालते हैं। परसेंटेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल एरिया, जो भी हमारा इनिशियल एरिया या एब्जॉर्बेंस जो भी मिला, इनिशियल एरिया डिवाइड बाय ऑब्जर्व एरिया डिवाइड बाय इनिशियल एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, इनिशियल एरिया डिवाइड बाय ऑब्जर्व एरिया डिवाइड बाय इनिशियल एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे हमारा परसेंटेज निकलता है। जनरली सॉल्यूशन स्टेबल हमारा तब तक कहा जाता है कि इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 5% प्लस माइनस होना चाहिए। 5% के अगर अंदर आ रहा है दैट मीन्स कि हमारा सॉल्यूशन स्टेबल है। तो बेसिकली ये 6 टर्म्स होते हैं, स्पेसिफिसिटी हो गया, LOD LOQ हो गया, प्रिसीजन हो गया, इंटरमीडिएट प्रिसीजन हो गया, एक्यूरेसी हो गया, सॉल्यूशन स्टेबिलिटी हो गई। ये हमारे सारे मेथड वैलिडेशन के पैरामीटर्स हैं, बेसिक पैरामीटर्स ये हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, कुछ ट्रबल शूटिंग के लिए डिस्कस करेंगे कि हमको मेथड वैलिडेशन में कौन कौन सी ट्रबल शूटिंग्स आती हैं। अभी जो करंट गाइडेंस है, करंट गाइडलाइन है एज पर ICH Q2 दैट इज द AMD, उसमें हमको कोई भी मेथड LOQ लेवल से 150% तक वैलिडेट करना है। ये लगभग बिफोर 10 इयर्स हम केवल स्पेसिफिकेशन लेवल पे ही वैलिडेट करते थे, लेकिन अभी ये गाइडेंस चेंज है कि हमको LOQ से 150 तक करना है, जिससे कि अगर हमारा कम से कम रिजल्ट भी आता है किसी सैंपल का तो वो हमारा प्रिसाइज होना चाहिए, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन भी जाता है तो वो भी प्रिसाइज होना चाहिए। इसके लिए हम LOQ को 150% लेवल तक हम इसको वैलिडेट करते हैं। एक टर्म और भी है जिसको हम बोलते हैं कि लीनियरिटी। ठीक है, इस लीनियरिटी को हम क्या करते हैं, किसी गाइडेंस में हम लीनियरिटी अलग करते हैं, नहीं तो हम यहाँ से ही हम LOQ 100%, 150% के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक से 7 टर्म्स हो गए इसमें लीनियरिटी, कोरिलेशन, इसमें हम कोरिलेशन कोफिशिएंट करते हैं। बहुत ज़्यादा जिनको मतलब एक्यूरेट अगर करना है तो वो LOQ पे एक मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद में 50% ऑफ स्पेसिफिकेशन लेवल, फिर 70%, 5% ऑफ स्पेसिफिकेशन लेवल, फिर 100% ऑफ स्पेसिफिकेशन लेवल, 150% ऑफ स्पेसिफिकेशन लेवल। इसके बाद में हम इसके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी लिमिट नॉट लेस देन 0.999। ये मिस हो गया था, ये लीनियरिटी भी एक पैरामीटर है। टोटल 7 पैरामीटर्स है। कहीं कहीं पे हम इसको LOQ to 150% के बीच में भी निकाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसके ट्रबल शूटिंग के का डिस्कशन कर रहे थे। जो हमारा UV स्पेक्ट्रम फोटोमीटर है, आइडियली उसकी एब्जॉर्बेंस 1.00 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम 150% तक जाते हैं सम केसेस में ये सैचुरेशन शो करता है।
सैचुरेशन मतलब अगर यूवी की लिमिट 4.000 है तो जो अगर इतना मतलब हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाता है कि हमको 3 मतलब स्पेसिफिकेशन लेवल और 150% लेवल दोनों पे ही सेम एब्जॉर्बेंस को देता है। इसलिए यूवी को हम धीरे धीरे इसको रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यूवी पे नहीं आता। कई बार हमको क्या होती है प्रॉब्लम कि स्पेसिफिसिटी में ब्लैंक कंटेमिनेटेड हो गया और जो हमारी पीक है इसी पे ही हमको छोटी सी पीक मिल रही है। तो स्पेसिफिसिटी लगाने के टाइम पे हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे हाथ साफ होने चाहिए, हमको कंटेमिनेशन बचाना है। बेटर ये है कि अगर हम स्टैंडर्ड बनाने से पहले अगर हम जो उसका ब्लैंक है वो अगर इंस्ट्रूमेंट में रख देते हैं तो ये कंटेमिनेशन नहीं होगा, स्पेसिफिसिटी में ये इंटरफेरेंस नहीं आएगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, प्रिसीजन जो है वो एलओक्यू लेवल पे एज एलओक्यू बहुत ही कम कंसंट्रेशन होता है तो इसकी आरएसडी नहीं आती है, फेलियर ऑफ एलओक्यू। तो इस केस में मैंने जैसे पहले बताया कि अगर हमारी स्पेसिफिकेशन लिमिट 10 ppm है तो हम 50% तो हम इसको अगर एलओक्यू की आरएसडी नहीं आ रही है तो हम यहाँ पे अपना एलओक्यू को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकेशन के 50% लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा प्रिसीजन में अगर एलओक्यू में हमें कभी कोई फेलियर मिलता है। थर्ड थिंग आती है प्रिसीजन हो गया, ये हो गया। इसके बाद में रिकवरी, अगर हमको रिकवरी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलती है क्योंकि इसमें एक्चुअल में स्पाइकिंग होती है। स्पाइकिंग में एनालिस्ट या कुछ मेथड अगर कुछ होती है तो हमको रिकवरी फेलियर बहुत मिलते हैं। तो रिकवरी लगाने के लिए सबसे पहले अगर हमारा भाई एलओक्यू पे अगर रिकवरी कम आती है एलओक्यू पे रिकवरी अगर कम आती है तो हम इसको एलओक्यू को भी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो स्पाइकिंग है वो बिल्कुल एक्चुअल मतलब उसमें माइन्यूट भी एरर जो है वो हमको एक्यूरेसी में प्रॉब्लम कर सकती है। सेकेंड थिंग, कई टाइम्स जो क्लीनिंग वैलिडेशंस होते हैं या जो इम्प्योरिटी लेवल्स पे के जो रिलेटेड सब्सटेंसेस के वैलिडेशन होते हैं वहाँ पे हमारा डिग्रेडेशन बहुत सारे मिलते हैं। तो उस केस में भी जनरली सॉल्वेंट्स यूज होते हैं तो वहाँ पे सॉल्वेंट इवेपोरेट ना हो, सॉल्वेंट